وہ اپنی کہے جا رہی تھیں اور جانیہ گمسم سی کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ پھر وہ بڑے حوصلہ ضبط کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ قسط نمبر 42۔ دل یوں ٹوٹا ہے، جانیہ کو لگا جیسے وہ واقعی اپنے دل کے ٹوٹنے کی آواز سن سکتی ہے، یوں جیسے دل کو شکنجے میں کسے اینٹھے مار رہا ہو۔ اس نے مٹھیوں سے اپنے بال پکڑ لیے اور کھینچنے لگی، پھر چیخ اٹھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کہ اندر لاکھوں آتش فشاں پھٹ رہے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چیختی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جگنو کے سینے میں اگر دل ہوتا تو اسے دیکھ کر تڑپ جاتا اور سب کچھ بھول کر اسے سینے سے لگا لیتا، لیکن وہ تو سنگ دل پتھر ہو چکا تھا۔ دل کی جگہ پتھر رکھ لیا تھا اس نے۔ وہ ایک ایک بات یاد کرتی رہی، بلکتی رہی اور تڑپتی رہی۔ اس نے خود کو زخمی کر لیا، پھر زخمی پرندے کی طرح تڑپتی رہی۔ اگلی صبح فریدہ آنٹی آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، زردی مائل رنگ، سفید ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی، زخمی ہاتھ۔ وہ صدیوں سے بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے ہمدرد دیکھا تو وہ ان کے گلے لگ کر بلک پڑی۔ ان سے جانیہ کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، میں نے اس لیے تو نہیں بتایا تھا سب کچھ، حوصلے سے کام لو، پھر دیکھو حالات کس رخ پر آتے ہیں۔ انہوں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، تم نے بات کی اپنے گھر، میرا کوئی نہیں ہے اور سسرال میں جگنو کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتی۔ نہ جانے ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، کہیں وہ یہ بندھن ہی نہ توڑ ڈالیں۔ وہ ایک بار پھر بکھر گئی۔ وہ اس کو تسلی اور تشویش دیتی رہی، لیکن جتنا اسے حوصلہ مل رہا تھا اتنا ہی وہ بکھر رہی تھی۔ اس کا وجود خزاں زد پتوں کی طرح ہوا کے دوش پر تھا، جہاں چاہے لے جائے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ آخر چلی آئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور اس کی زندگی بھی ان اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کبھی وہ سوچتی، وہی سب سننے سے پہلے مر کیوں نہ گئی، یا ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ اس کا ذہن جیسے ہر احساس سے عاری ہو گیا، جانے وہ کب تک یوں ہی پڑی رہتی، کیسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا، جیسے روشنی اندھیرے کو نگل گئی ہو۔ آنکھیں کھولتے ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ جانیہ اٹھو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ جانیہ اس کو دیکھ کر بے قرار ہو گئی اور بے اختیار اس کی باہیں اٹھیں۔ اس کے سینے سے لگ جانے کی خواہش دل میں ابھری۔ ایک ایک بات پوچھے اس سے، لیکن بھی کسی زخمی پرندے کی طرح بازو اس کے پہلو سے گر گئے اور سر جیسے تکیے نے جکڑ لیا ہو، مگر اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ فریدہ آنٹی کے منہ سے سنی باتیں اس کے منہ پر تماچے مارنے لگیں۔ جانیہ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور گونگی بہری سی بن گئی۔ نہیں بولو گی؟ وہ کچھ نہیں بولی، اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، مگر اب کیا خاک بتائیں گے، جن غیروں کی زبانی سب معلوم ہو گیا ہے۔ بڑے دعوے کیے تھے نا آپ نے کہ زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آنے دوں گا کہ تمہیں خود جدا کروں۔ یہ میری شکست ہے، ٹوٹ کر بکھر جانے کی شخصیت۔ بڑے مان سے کہا کرتے تھے نا کہ تم میری زندگی ہو۔ اس نے دل میں سوچا، لیکن زبان الفاظ کا ساتھ نہ دے سکی۔ مجھے شاہانہ نے فون کر کے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور 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 یہ کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، تو اب بھی آپ دوسروں کے کہنے پر آئے ہیں۔ وہ بلک پڑی۔ جگنو نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا تو اس نے جگنو کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بہت تھکی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں اٹھنا نہیں چاہتی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ تمہیں اٹھنا چاہیے جانیہ، اپنی حالت دیکھو کیا بنا رکھی ہے، ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو پلیز جانیہ۔ میری حالت یا صورت سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ گڑ گڑائی۔ جگنو کا ہاتھ اس کی پیشانی پر چلا گیا، جہاں گومڑے ہی گومڑے پڑے تھے۔ دانت سے ایک سسکی نکل گئی۔ بہت درد ہے نا؟ یہ درد ناسور بن گیا ہے اب۔ وہ ایک بار پھر سے بکھرنے لگی۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میرے جگنو کو مجھے لوٹا دو، تمام زندگی اس کی داسی بن کر رہوں گی۔ میرا جگنو مجھے دے دو بس، میرا جگنو لوٹا دو مجھے، سب کچھ لے لو، کچھ نہیں چاہیے مجھے، یہ دولت، گھر، سب کچھ، لیکن میرا جگنو میرا رہنے دو۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ ایک جگنو ہی تو ہے میرے پاس، ایک ہی تو سہارا ہے میرا۔
फिर वो बेजान सी होकर जुगनू की बाहों में गिर गई। इसका दिल और दिमाग जज्बात से आ रही, चेहरा सरसों के फूल की मानिंद जर्द हो रहा था, आंखों की पुतलियां चढ़ी हुई थी, होंठ से रस चढ़ गया था। क्या हो गया, कैसे जीऊंगी? बेकरार और खामोश पुकार इसके जहन के भगोले की तरह घूमने लगी। आंखें खोलो जानिया, आंखें खोलो प्लीज, जुगनू ने इस पर झुकते हुए कहा। जानिया ने सख्ती से आंखों को बीच लिया। अब जानिया कभी नहीं उठेगी, यूं ही पड़े पड़े जान दे देगी, ना खाएगी ना पिएगी, सब खुश रहें। इसने अपनी सोचों को जुगनू पर जाहिर नहीं होने दिया। जानिया एक छोटी सी लड़की थी, इसका हंसता हुआ चेहरा इसकी नज़रों में घूम गया। लगता ही नहीं था ये चेहरा इस जानिया का नहीं था। जानिया उठो, कुछ खा पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। इसने जानिया की बाजू पकड़कर उठाया तो देखा इसकी बाजू जख्मी थी। कुरून डालने के बाद जगह जगह खून जमा हुआ था। इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इसे देखे गया। जानिया की जुबान खुश्क हो गई थी और जैसे कांटे उगाए थे। वो दोनों बाहें अपने गिर्द बांधे हुए थी। इस वक्त इस लम्हे कर्ब और अज़ियत से गुजर रही थी। आगे कुछ भी नहीं था और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। उठो, ये गर्मा गर्म दूध पी लो। जुगनू ने इसके गरम गरम दूध का गिलास लेकर आया था ताकि वो कुछ खा पी ले तो बदन में चुस्ती आए। जानिया बगैर ख्वाहिश के उठ गई और बिना ख्वाहिश के ही गिलास पकड़ लिया। इसने गिलास लबों से लगा लिया और आंखों से आंसू बह रहे थे। गरम दूध पीकर जैसे जानिया की के बेजान वजूद में जान आई थी। इसकी आंखें खुल गईं। ये हुई ना बात, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। इसने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं तैयार हो कर आता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे और घूम फिर कर आएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। इसने रुख मोड़ते हुए कहा। ओके। वो फ्रेश होने चल दिया। जानिया ने आईने में अपना अक्स देखा। चेहरा देखकर से यूं लगा जैसे होंठ पड़ा गए थे, माथे पर गुमड़े बने हुए थे और बाजू पर खरोंचों के निशान, बाल बिखरे हुए थे। अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी? हाय, अब मैं जुगनू के बगैर कैसे जीऊँगी? जानिया की निगाहों में सबके चेहरे घूम गए। नानो, बड़े मामू, बड़ी ममानी, छोटे मामू, छोटी ममानी और फिर मम्मा जानी, बाबा जानी, एहतशाम भाई, अलमास भाभी, हमज़ा, सादिया, फ़ायज़ा और फ़रहिया। कोई भी नहीं है मेरे पास कि दो लफ्ज़ हमदर्दी के कह दूँ और वो मेरा दुख बांट ले। इसने हाथ की पुश्त से आंखें साफ की। ये घर की क्या हालत बना रखी है तुमने? इसने शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए कहा। घर कहाँ पर है घर? मेरा घर। इसने सोचा। जुगनू ने इसका हाथ थाम लिया। इसका हाथ सर्द बेजान था। जानिया ने ठंडी सांस ली और वो खामोशी से जुगनू का मुंह तकती रही। क्यों खुद को तकलीफ देती हो? जुगनू ने कहा। और मर्द को इजाज़त है वो कुछ भी करता फिरे, ज़िंदगी के मज़े लूटता फिरे, बीवी घर में मुंतज़िर हो और गैर औरतों से दिल बहलाता रहे। क्या ये मर्द को ज़ेब देता है? जुगनू ने लबों को दांतों से काटा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मगर मैं ख़त्म कर लूँगी अपनी खूबसूरती जो किसी काम नहीं आई। तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम ही करती रही हूँ, लेकिन अब तो फैसला होगा। जुगनू ने इसकी तरफ देखा। तुम चाहो तो पाकिस्तान चली जाओ। इसने जानिया का वजूद में कील ठोंक दी। पाकिस्तान के साथ ही इसे सास, नंदों, जिठानी, देवरानी का ख्याल आया। क्या होगा अगर से पाकिस्तान जाना पड़ गया? कैसे वो ससुराल वालों को मुंह दिखाएगी? कैसे वो ननिहाल की दहलीज पर जाकर खड़ी होगी? अब कौन है वहाँ इसका मुंतज़िर सिवाय खाली घर के? कुछ अरसे के लिए तुम फ्रेश हो जाओ तो लौट आना। जुगनू ने इसे ढाल दी। वो बात कीजिए जो करना चाहते हैं, जो बताना नहीं चाहते थे। जानिया होंठ चबाने लगी। तकदीर के भी क्या अजब खेल हैं। जानिया की आंखों में एक बार फिर आंसुओं का सैलाब आ गया। अब इसके पास रोने के सिवा क्या था? इसके सामने जुगनू ही था, लेकिन एकदम बदला बदला सा, वही चेहरा, लेकिन तेवर बदले हुए। मैं तो हूँ ही कर्मो जली। पैदा होने से पहले बाप को खा गई, पैदा हुई तो माँ को, और अब अपने घर को भी डस लिया है मैंने। जुगनू खामोश बैठा रहा। बहुत देर तक दोनों तरफ खामोशी छाई रही। फिर जानिया ने पूछा, मेरा क्या करेंगे? क्यों, करना क्या है? जुगनू ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। जानिया, मैंने अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है। मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी ज़िंदगी का इंतखाब खुद करो, क्योंकि हमारा ताल्लुक अब मुर्दा हो चुका है। जानिया ने बहुत हौसले से जुगनू की बात सुनी, क्योंकि वह ये सब जान चुकी थी। ना जाने इसमें इतना हौसला कहाँ से आ गया था। ताल्लुक का मरना या जीना आपने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं गई थी क्या आपके पाँव पड़ने के मुझ से शादी करें?
आप ही ने मुझे जानिया के हलक में आंसुओं का फंदा अटक गया। मुझे चाहतों के दरख्त से शाख की तरह तोड़ कर ले आए। अब कहते हैं कि ताल्लुक मुर्दा हो गया, ख़त्म हो गया, पिछली बातें दोहराना बेकार है, हमारा साथ रहना नामुमकिन है, मैं फ्री होना चाहता हूँ। जानिया ने गड़बड़ा कर कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगी जुगनू, सच में बिल्कुल खामोश रह लूँगी। रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो आप देंगे वो सर आंखों पर, बस मुझे खुद से अलग ना करें। कितने लोग यूं ही निभाते चले आए हैं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। मैं कह चुका हूँ ना, ये नामुमकिन है। क्यों? वो इसके मुंह से सब सुनना चाहती थी। क्योंकि क्या क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा नहीं किया था आपने मुझसे? जानिया, मुझे मजबूर मत करो, तुम सब कुछ ले लो, बस तुम पाकिस्तान लौट जाओ। मैं तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारी रकम ट्रांसफ़र कर दूंगा और हर माह भी माकूल रकम भेजता रहूँगा। मुझे खुद से जुदा मत कीजिए जुगनू। फिर वही बच्चों की सी बात। जानिया ने टूटते लहजे में पूछा, वो औरत कौन है? कौन औरत? वो ही जिसके लिए मुझे घर से निकाल रहे हो। कोई भी औरत नहीं है, प्लीज़ बताओ कौन है वो जो भी है तुम इसे नहीं जानती। मुझसे बहुत खूबसूरत है क्या? नहीं। फिर भी इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो क्यों? जानिया, जुगनू सख्त लहजे में कहा। जुगनू की निगाहें बदल गई थीं। वो इसे छोड़ना चाहता था। इसने अपने लरजते हाथ जुगनू के हाथ पर रख दिए, जैसे हाथों पर इसका इख्तियार ख़त्म हो गया हो। जहन माऊफ था, दिल जैसे फटा जा रहा था। जुगनू की बाहों के हिसार में घिरकर वो खुद को कितना महफूज समझती थी, जैसे ज़िंदगी की तलखियाँ भी इसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगी। इसके पास जुगनू की मोहब्बत, जुगनू का साथ है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने तो क्या बिगाड़ना था, अब जुगनू ही सब ख़त्म करने पर तुला रहा था। इसके पास सब सवालों के जवाब थे, लेकिन ज़िंदगी के सवालों के जवाब नहीं थे। इसने जुगनू को देखा, वो कमज़ोर हो रहा था। जुगनू, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। वो पागल अभी भी इसकी फ़िक्र में घुली जा रही थी जो इसे छोड़ रहा था। जानिया, मैंने इसने जानिया का हाथ पकड़ा। वो खुद में सिमट गई। चंद लम्हे खामोश रहे, फिर गोया हुआ, जानिया, अगर कुछ वक्त हो तुमसे बातें करनी थी। वो खामोश रही, अपनी गोद में रखे हाथों को देखती रही। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, और यकीन करो इसी एहसास के साथ लम्हा ब लम्हा जीता हूँ, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जानिया चुप रही। तुम समझती हो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, दुख नहीं होता, मुझे किसी कमी का एहसास नहीं होता। मैं इस ताल्लुक़ को निभा नहीं सका, इसकी नदामत नहीं मुझे। फिर जानिया ने सवाल किया। जुगनू कोई जवाब ना दे सका, इसके चेहरे को देखता रहा। कुछ हादसे वाक़यात इतने बड़े होते हैं कि हम भी पर हावी हो जाते हैं और हम खुद को इनके आगे बेदस्तो पा और बेबस पाते हैं। वो खुश्क लकड़ी की तरह चटकने लगी। इसके अंदर आग लग रही थी जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। जानिया खामोश और साख्त बैठी सोच रही थी। जुगनू अभी यहाँ है मेरे सामने, मैं इसकी आवाज़, इसकी सांसों और इसके तमाम वजूद को महसूस कर सकती हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि जुगनू को रोकने के लिए क्या करूँ। ऐसा क्या करूँ कि ये लम्हे जादुआ हो जाएं। क्या जुगनू के पैर पकड़ लूँ, गिड़गिड़ा जाऊँ, वो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाले बगैर बैठी रही। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस ताल्लुक़ को तोड़ दिया जाए। जब सब ख़त्म ही होना है तो फिर ये देर क्यों? जुगनू, ऐसा नहीं करो प्लीज़, नहीं करो ऐसा। मुझे आपकी ज़रूरत है। आप वाहिद हैं जो मेरा सहारा है। मेरे वालिदैन नहीं हैं, भाई भी नहीं है, और ना ही कोई औलाद है। मेरे तो तमाम रिश्ते ही आपसे हैं और ज़िंदगी भर का सरमाया भी आप हैं। बस कमी मुझ में है, कमी तुम्हारे अंदर नहीं। मैं ही इस काबिल नहीं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। वो जानती थी कि वो जवाब देगा, लेकिन वो खामोश रहा, और उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा थी। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, इसने कहा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आप शादी कर लें, लेकिन मुझे खुद से जुदा ना करें। वो रो दी। मैं मजबूर हूँ, इसने मुख्तसर कहा और बोला, सुबह बात करते हैं। वो घुटनों में चेहरा छुपाए रोती रही। जानिया, इसने जानिया अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। प्लीज़ अपनी देखभाल करो, अपना ख्याल रखो। वो यूं ही सिमटी हुई बिलखती रही।
वो सर थपकते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं सोना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोली। अब बोलने को रह भी क्या गया था। बिछड़ जाएंगे हम, लेकिन हमारी याद के जुगनू तुम्हारी शब के दामन में सितारा बन के चमकेंगे, तुम्हें बेचैन रखेंगे। बड़े मसरूफ रहने के बहाने तुम बनाओगे, बहुत कोशिश करोगे तुम कि अब मौसम जो बदले तो हमारी याद ना आए, मगर ऐसा नहीं होगा कभी। जो सर्द मौसम में मेरे माजी को सोचोगे तो आंखें भीग जाएंगी, बिछड़ जाओगे। मगर सुन लो, हमारे दरमियान ऐसी कोई तो बात भी हुई होगी जिसे तुम याद रखोगे, जिसे तुम याद रखोगे।